मेरा mute हुआ हुआ है. Can you guys hear me? Yes, ma'am. And Yes, Archana, ma'am. can you see me also? Yes, ma'am, we can see you. And a beautiful sun shining there at the back. Yeah, so I'm in Rishikesh Wow. and you can see गंगा मेरे पीछे बह रही है और ये पीछे mountains है. Wow. So nice. Thanks to you, ma'am, for such a nice view. Yeah, so I thought I'll sit in the balcony and make everybody see and enjoy the beauty of this place. Yes, ma'am. Thank you. And it's so serene, so peaceful, no? Yes, ma'am. Wow. Good. I said, okay, even if my face is not very clearly visible, it's fine because at least they will be able to see Ganga and mountains. Yes, ma'am. Nice, ma'am. Yeah, thank you. Okay, so how was the experience of doing the health magic yesterday? I want somebody to share. कल का असाइनमेंट जब आपने किया अबाउट हेल्थ और अपने अपने बॉडी पार्ट्स को देखा और उनको थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड बोला, कैसा महसूस हुआ उस वक्त? आई वांट समवन टू शेयर. प्लीज अनम्यूट एंड शेयर. See, unless I know whether you people are doing the assignments or not, it's not going to make any sense because मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ पर हो. So I really want everyone to be very participative because this is not like कि आप कोई कथा सुन रहे हैं या आप कोई motivational talk सुन रहे हैं. It's not like that. I'm also one of you. और मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ साथ. तो हम आपस में बात भी करते रहे ना, तो थोड़ा सा एक दूसरे को encouragement मिलता है कि हाँ इसका ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो मुझे भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए. मुझे नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे कहाँ पे something is missing so that I start experiencing that kind of a feeling. So I really want someone to share. How was the experience yesterday when you did the assignment? Can I share? Yeah, Varun, please. पहली बात तो have you started recording? Yeah, I've started recording. Thank you so much. Okay. तो ना like कल जैसे पहले तो मेरी ना एक inauthenticity थी जो मेरे को नजर आई कि like I have taken my body, my health for granted. Yeah. मुझे ऐसी कुछ चीज फ्री में मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती. Yeah. तो literally I have tears in my eyes yesterday जब मैं thank you बोल रहा था अपनी बॉडी की एक पार्ट को कि कैसे वो एक पार्ट मेरे को सर्व करता आया है like throughout my life. Yeah. My hands have been supporting me, my knees, my legs, my eyes. Like, and instead of saying thank you to them, I have been exploiting them. तो वो एक गिल्ट भी मन में आ रहा था कि यार अपनी बॉडी की ना वैसे ना कदर नहीं करी जैसे करनी चाहिए थी. Which is the most precious gift that God has given me. Yeah. उस अमानत की ना कदर नहीं करी तो I was upset, I was in guilt. फिर मैंने खुद को रिकवर किया कि like जो हो गया उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता. But from now onwards, I can be thankful to my body for being thankful to each and every part and organ of my body. तो फिर मैंने वो लिखा और मैंने उसको loudly पढ़ा. तो finally, in the evening, I was at peace. Finally, I'm on the right track. Great. So, when you read that paragraph, those 4 or 5 paragraphs about your legs, your arms, your senses and all. And did you close your eyes and experience that? I experienced it with my open eyes, not closed eyes. Okay. That's great. So that's really great. So how many of you did that exercise the way it was designed, the way it was mentioned? You can say yes or no. Please unmute and say yes or no. Did you do this assignment the way it was designed? No, I could not do it the way it was designed. But I just did it in my own way. Like I was sitting and I just acknowledged my body and paid thanks to the body. So what was the way it was written in the book? How was it supposed to be done? With the closed eyes, sitting in some posture, with straight spine, it was designed. It was said it like when we read yesterday, it was in this way, no? And
see each and every part, like a proper meditation. You sit and watch everything and then pay thanks to it. Could not do it that time, but in my imagination, I pay thanks to God. Okay, fine. So my suggestion and recommendation to each one of you is that please follow the way the book is asking you to do. We are so used to doing things on our own way. And then we always keep saying कि हमें कुछ results नहीं मिल रहे हैं. आप जिंदगी में कहीं पर भी देखोगे ना, आपने जिस तरह से पढ़ाई करने के लिए बोला डॉक्टर ने, स्कूल में टीचर ने, आपने अगर उस तरह से पढ़ाई करी तो आपने अच्छी तरह से नंबर लिया. सिमिलरली आपने कोई कोर्स किया या आपने मान लीजिए आपने मेडिटेशन ही सीखना शुरू किया, तो जिस तरह से उसके स्टेप्स हैं आपने उस तरह से उसको फॉलो किया तो आप बहुत जल्दी मेडिटेशन सीख जाते हैं. Similarly, when you're learning yoga or you're doing exercise, the way your coach is asking you to do, if you start doing it that way, you will get the kind of results you want, or maybe even beyond that. But अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया है. Not even a single person is like that कि उसने अपनी मर्जी ना चलाई हो कहीं ना कहीं. And that's okay. There's nothing wrong in that. But now, अगर हमने इस बुक को शुरू किया है और हमें इससे कुछ फायदा लेना है, तभी हम रोज सुबह उठ के आ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, so then let's do it ना. जिस तरह से बुक कह रही है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो so let's start doing it the way the book is designed और जिस तरह से बुक हमें कह रही है. Okay? तो अगर आप लोगों ने उस तरह से नहीं किया है तो do it today. है ना? कुछ ऐसा है नहीं कि आपने कल नहीं किया तो आप कर ही नहीं सकते. आप आज से कर लो, आज उसको आज करके देख लो, 5-7 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम लगता है. और एक टाइम पे बैठ के सारा नहीं करना चाहते तो just sit down and scan your body and whichever part you want to say thank you, just keep doing that. But do it the way it is designed. Yeah, so that is what I just wanted to know. See, that is why I want people to share. क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, आप जो असाइनमेंट है उसको किस तरीके से कर रहे हो, क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो. So that is the reason I keep asking everybody to keep sharing. अगर एक शेयर करता है, हो सकता है जैसे मीनू ने शेयर किया अभी, she did not do the way it was written in the book. हो सकता है आप लोगों से बहुत लोगों ने नहीं किया हो, पर जब मैंने उसको आंसर दिया है, which was actually meant for each one of you, you also got your answer, na? How to do it. That is the power of sharing, right? So great. So today's chapter is about money, which is so important. Ma'am, sorry to interrupt. Ma'am, yeah, I have a sharing, ma'am. This is Archana. Yeah, Archana, ma'am, yesterday what happened, like at night, because of AC, I was sneezing a lot. And because of that, I was unable to breathe. I was sneezing so much that my nose was running. And I got up from sleep. I was sitting. Then I remembered your words. I was like, I started saying, thank you, my nose. I'm able to breathe. I did for around 10-15 minutes like that continuously. And after some time, my nose stopped running. And I was absolutely fine. I slept throughout. And in the morning, I was normal. Wow. So that is the power of magic. So, I mean, हम ना हर चीज के लिए फटाफट पिल्स लेने की सोचते हैं, दवाई खा लेते हैं, हम ही दवाई खा लेते हैं. अरे भाई, ये वाली दवाई तो खाओ पहले, और अगर बहुत जरूरी है तभी दवाई खाओ. यस मैम. और अगर खा भी रहे हो तो उसके साथ भी ग्रेटिट्यूड करो, तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है. So thank you so much, Archana, for sharing that. Yes, and one more thing happened with me, ma'am, last night when I was doing magic rock. When I was just about to sleep, I said those words. Like, दिन में भी मैंने 3-4-5 बार कहा, the gift of health is keeping me alive. Yeah. आपने जैसे बोला था धीरे धीरे बोलने के लिए, तो मैंने रात को सोते समय वैसा किया. एंड रात को करीबन जब 3-4 बजे मैं वॉशरूम यूज करने के लिए उठी, तो मेरे दिमाग में वही रिंग कर रहा था जैसे लग रहा था. Yes, that is the power of subconscious mind.
इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आपके दिमाग में लास्ट थॉट होता है वो पूरी रात प्रोग्रामिंग होती रहती है उसकी, इसीलिए वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए मैजिक रॉक करते हैं कि आप सोने से पहले ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो आप पॉजिटिविटी के साथ सो रहे हो, है ना। तो जो भी थॉट आप लास्ट लेके सोते हो, यू विल बी, आई मीन यू विल एवरी टाइम यू विल एक्सपीरियंस इट कि आप रात को भी उठते तो वही थॉट चल रहा होता है, आप सुबह भी उठोगे तो यू विल गेट अप विद दैट थॉट ओनली। चाहे वो आप अगर कोई किसी के साथ झगड़ा करके सोए हो तो वही दिमाग में आएगा, अगर आप कोई टेंशन लेके सोए हो, कोई वरी लेके सोए हो, तो वही सुबह उठते भी आपकी दिमाग में वही होगा सबसे पहले। So similarly, when you say gratitude for something, so that stays in your mind. Thank you so much for sharing that. Yes, and ma'am. I hope everybody will be on the same page that this is how it happens. Yeah. Yes, ma'am. Thank you for teaching, ma'am. Jagjit ma'am, please tell us wo kahan par ye what beautiful one scene you are showing us. I'm in Rishikesh, and I'm sitting in my room's balcony where I'm staying, which is overlooking Ganga. So there's a Ganga flowing, and then there's a mountains around, and it's a very peaceful place and very serene. And you are looking beautiful in this peaceful, beautiful scene. दोनों चीजें बहुत सुंदर लग रही है। Thank you so much. और एक मैडम है, very good. Thanक यू। मैंने पहले I had a आपको choice. एंट्री मिल गई क्या ऋषिकेश में? अभी रोड ओपन है क्या? हाँ हाँ, everything is fine. So आपने को RT-PCR रिपोर्ट वगैरह मांगा आपसे रास्ते में? हाँ, that was required, yes. That was required. मैंने संडे को टेस्ट कराया था, मंडे को रिपोर्ट आई। कल जैसे ही हमारा सेशन खत्म हुआ, we had already packed everything and we just left at 8:30. Okay. And so we were here at I think 1:30 के करीब पहुंच गए थे हम। And the drive was so good, very good drive, very good road, yeah, beautiful weather. तो hotels भी open है सारे? हाँ हाँ. Okay. And the place where I'm staying is very beautiful, like very nice. And because मेरी balcony से तो गंगा और सब दिख रहा है। कल रात को हम लोग लक्ष्मण झूला गए थे, and वो लक्ष्मण झूला में ना उन्होंने लाइट्स लगाई हुई है रात को, बहुत सुंदर लगता है। I'll share the pictures. And हम लोग गंगा किनारे बैठे हुए थे। एक यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई हुई है, and she's been here for quite some time. उसने कुछ योगा का कोर्स किया है, तो उनके वो गुरुजी मिल गए एक, and हम सब लोग गंगा के किनारे सीढ़ियों पे बैठ के इतनी देर तक हम लोग प्राणायाम कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ना। तो मैं वही बात कर रही थी कल वनीता से, I said there's no stress, there's no tension, it is so serene. So thank you so much for asking, and so let's start the chapter. I'll just bring, who's going to read today? Ma'am, I nominate my name. Yeah, who was that female voice who said that I will read? Ma'am, this is Archana. Okay. So, one second. Yeah. So, Varun, you read yesterday, right? Yes. Okay. Let Archana read today. Okay. Thank you, Varun. Welcome. Okay. Are you able to see the page? Yes, ma'am. I can see the page. Yes. Okay. Start. Day 5. Magic money. ओके, सो हमारे लिए पैसा बहुत मायने रखता है, सबके लिए रखता है ना। और अगर हमने अपने ड्रीम्स लिखे हैं ना, तो 90% लोगों ने उसमें पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखा है, क्योंकि सब कुछ तो पैसे से रिलेटेड ही होता है। और हमारे लिए पैसा जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके बिना ऐसा लगता है जिंदगी ही नहीं है ना। हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। बट पैसा है क्या? पैसा इज एन एनर्जी। जैसे हम लोग एनर्जी हैं, वी ऑल आर एनर्जी, यू नो दैट, राइट? सीक्रेट मूवी में सुना था ना आपने, वी ऑल आर एनर्जी। सो सिमिलरली मनी इज ऑल्सो एनर्जी, और उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो वो एनर्जी, वी एक्सचेंज एनर्जी, राइट? और आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि आप कुछ भी सीखते हैं या कोई आपको कुछ सिखाता है या आप किसी से कुछ पढ़ते हो तो एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। सुना है ना ये आपने? Yes, आपने सुना होगा जो हीलर्स भी होते हैं, रेकी करते हैं या कुछ बैच फ्लास करते हैं या कुछ भी थेरेपी करते हैं, तो दे विल से कि हम वैसे वी डोंट चार्ज, बट
डू सम एनर्जी एक्सचेंज, या आप कुछ पैसे देते हैं ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उन्होंने जो आपके साथ एनर्जी शेयर की है उसकी एक्सचेंज में आप उनको भी एनर्जी दे रहे हो, और वो एनर्जी जो है वो हम पैसे के रूप में देते हैं। सो इट्स जस्ट एन एनर्जी, या और उस एनर्जी का अपने आप में कोई अहमियत नहीं है, वो एनर्जी को हमने ही पावर दी हुई है ना। सो अब ये क्या है, ये आगे आगे जाते जाते हम पढ़ेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमने किस तरह से उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, और फिर भी मनी हमें क्यों हमसे भागता रहता है, क्यों हमारे पास टिकता नहीं है, क्यों हम उसको पकड़ने के चक्कर में रहते हैं कि हमें और मिल जाए, और वो इधर से निकल जाता है, कभी इधर से निकल जाता है, कभी कहीं से बिल्स आ जाते हैं, कभी कहीं से कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और वो हमारे पास टिकता ही नहीं है। वो क्यों होता है? हाँ, सो लेट्स रीड दैट। Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science Hyman. ओके, तो हमने जो महामंत्र इसका मैजिक का पढ़ा है उसमें वो कहता है कि भी आप जिस चीज के लिए भी ग्रैटिट्यूड देते हो उसमें उसके लिए आपको अबंडेंस मिलती है, या सो ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट्स इज पॉवर्टी। जहां जहां पर भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। यही बोल रहा है ना वो महामंत्र जो है। तो उसका क्या मतलब है, जहां जहां ग्रेटिट्यूड है वहां रिचेस है, और जहां कंप्लेन्स हैं वहां पर क्या है, पॉवर्टी है। या प्लीज रीड। If there is lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. ओके, सो टेल मी, आप जहां पर भी आज हैं, आपको मनी को लेके इनमें से क्या क्या फीलिंग्स आती रहती हैं? यू फील जेलस अबाउट समबडी, जिसके पास बहुत पैसा हो तो आपको लगता है अरे इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, है ना। अब जैसे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि मैं अभी अमृतसर होके आई थी, और अब मैं इस टाइम पर मैं ऋषिकेश में हूँ। लास्ट वीक आई वाज इन अमृतसर। सो देयर आर पीपल हु आर फीलिंग इन माय नेबरहुड कि हम लोग तो घर से नहीं निकल रहे हैं, हम तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, एंड ये शी इज traveling the different places. So there are somewhere, like I know one particular person who was talking about it. So somewhere that person is feeling jealous. अब वो jealous feel कर रहे हैं मेरे travel से, but travel के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं travel नहीं कर सकती हूँ। I can't stay in this hotel, which is not cheap, obviously. So even for traveling from Delhi to this place, I had to pay some money, na, to the taxi wala or the cab guy. So if you look at somebody and somebody is spending money and you feel jealous about them, ये हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करते ही हैं, डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। आपने सोचा मेरी तो अभी जब अप्रैल में सबके जितने भी लोग जॉब करें, यूजुअली अप्रैल में सबका अप्रेजल्स होते हैं, और मई जून तक उनको अपना सारा जो 1 अप्रैल से अभी तक का जो भी होता है पैसा सारा मिलता है। अब वो आपने जितना एक्सपेक्ट किया उससे कम आया तो यू आर डिसअपॉइंटेड। होते हैं हम लोग, यस और नो? यस मैम। हम सब लोग इन सब एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? यस मैम, वी डू। एंड डिस्करेज्ड, यू वांट टू डू समथिंग, बट आपने कोई कोर्स करना है, मान लीजिए मुझे एक मान लो मुझे मनी से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, कि मुझे सीखना है कि मुझे अपने टैक्सेशन कैसे करनी चाहिए, मुझे सेविंग कैसे करनी चाहिए, हाउ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइंस और समथिंग, आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट इट।
Now to learn that I need to pay money. And वहां जब पैसा देने की बात आती है तो मुझे लगता है यार छोड़, पैसे नहीं देने, फ्री में कोई सिखा देगा तो सीख लूंगा या सीख लूंगी. So you get discouraged because you have to spend money. And then you feel doubtful कि मुझे इसकी इतनी वैल्यू मिलेगी भी, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ. और बहुत बार ऐसा लगता है यार इतने ही पैसे रह गए मेरे पास, अब कहीं ये भी खर्च ना हो जाए, तो you feel fearful about it, worried about it. होता है ऐसा सबके साथ कि नहीं होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोस्टली लोगों के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी, कि पैसे जब अकाउंट में कम होने शुरू होते हैं तो एक तरह से थोड़ा सा वरी या फियरफुलनेस आ जाती है, यार अगर कोई बड़ा बिल आ गया तो कैसे पे करूंगा या कैसे पे करूंगी. So we all go through these kind of emotions, and emotions are what feelings. Feelings are what energy, and feelings are what frequency. और वो क्या करती है? Like attracts like. तो हम जैसी ही भावनाएं, जैसी ही फीलिंग्स मनी को लेकर देते हैं, वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में क्या होती हैं और होती हैं. So complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, ये हम हर टाइम एवरी डे कर रहे हैं. Complaining about money, arguing about money, negotiate करते हैं. सब्जी वाला कह रहा है भैया 20 रुपए किलो दूंगा टमाटर, अरे भाई कमाल कर रखा है तूने, सब जगह 10 मिला, तू 20 ले रहा है. So we are arguing about money. Yeah, getting frustrated about money. क्या इतनी हर बार इतना बिल कैसे आ जाता है? तो मनी से रिलेटेड हो गया. Though we are talking about bill, but what are we getting frustrated about? Paying that money. तो जब ये सब चीजें हम रोज कर रहे होते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो नेगेटिविटी दे रहे हैं ना उसको. जैसी फीलिंग्स हम दे रहे हैं वैसी चीजें हमारी लाइफ में होंगी. तो क्या हमें अबंडेंस मिल सकती है ऐसे में? No, ma'am. So that is why we always have some issues with the money or not, because we are not grateful. Yeah, please continue. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. Okay, तो आपके पास जो भी आज है, अभी है आपके पास, जितना भी पैसा है, अगर थोड़ा भी है, अगर आप उसके लिए अभी से ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, तो you start attracting more money into your life, because the Maha Mantra which is coming next says, yeah Archana, read it. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. Okay, तो अभी अपनी लाइफ में देखो आपकी लाइफ में मनी की क्या सिचुएशन है, एंड जस्ट ट्राई टू अप्लाई दिस. क्या आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड किया है? नहीं किया है तो दैट इज द रीजन दैट योर मनी इज नॉट ग्रोइंग, इट्स नॉट इन अबंडेंस. या क्योंकि हमने वो सब किया है जो हमने अभी बात किया, क्रिटिसिज्म, है ना, वो सब जो चीजें हम पढ़ रहे थे, बी फियरफुलनेस. सो yeah, yes, ma'am. Yeah, please read. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for everyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you feel continue with the money practice throughout the day. Okay, तो अभी ये बोल रहे हैं कि इस प्रैक्टिस को आपको सुबह सुबह करना चाहिए, so that throughout the day you can practice it. So we are doing that in the morning.
so that you stay with this thought of gratitude for money, और जो भी है आपके पास इस वक्त उसके लिए आप ग्रेटफुल हो पाए। तो हमने शुरू में पढ़ा कि शुरू के 12 चैप्टर्स में हम जो पास्ट में हमें मिला है हम उसके लिए पहले ग्रेटफुल होंगे, पास्ट और प्रेजेंट के लिए। तो आज जो हमारा मनी का चैप्टर है, in this chapter we will be paying gratitude for what we received in the past. So going forward we will read about it. तो अभी हमने अपने पास्ट में और प्रेजेंट में हमारे पास जो कुछ है, प्रेजेंट में जितना भी है उसके लिए, और जो पास्ट में हमें मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। हाँ जी, पढ़े। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, "Thank you," with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go any vacation when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grow so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Okay, pause. तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिट डाउन। अब ये लिखना नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह पे बैठना है एंड जस्ट थिंक अबाउट दोज डेज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप बच्चे थे, जब आपके पास पैसे नहीं थे, आप कमाते नहीं थे, पर आपको ये सब चीजें मिली थी क्या? क्या आपको खाने को भोजन मिला था? क्या आपके पास घर था? क्या आपके पास कपड़े थे? आपको पता बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा अपने बच्चों के साथ भी या आसपास में भी देखा होगा, छोटे बच्चे के लिए आप कपड़े लेके जाते हो, 6 महीने में उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। ग्रोइंग एज में दे आउटग्रो क्लोथ्स। तो क्या जब जब आप बचपन में बढ़ते जा रहे थे, तो आपको हर बार अपने साइज के कपड़े मिले थे? आपको कपड़े मिले थे, जूते मिले थे? आपने जब पढ़ाई शुरू करी तो आपकी स्कूल फी किसी ने पे करी थी? आपको किताबें लेके दी थी, यूनिफॉर्म लेके दी थी, वाटर बॉटल और वो पेंसिल बॉक्स और आपका लंच बॉक्स, ये सब चीजें लेके दी थी ना किसी ने तो। और इन सब पे पैसा लगता है, फ्री में नहीं आती, तो किसी ने तो पैसा दिया था ना उसका। तो क्या आपने उसके लिए थैंक यू बोला? हमें लगता है ये तो हमारे माँ बाप का फर्ज था और उन्होंने करा, सो व्हाट बिग डील। बट थिंक अबाउट द पीपल who don't have money to pay for this, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसे स्कूल्स हैं कि वहां पे मतलब ये फर्नीचर भी नहीं होता, टाट पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उनके पास पेन पेंसिल नहीं होते, वो स्लेट पे लिखते हैं। Think about those people, but you had everything. Yeah, and then there are children who grow up in orphanage. उनके लिए भी तो कोई पे कर रहा है। अगर ऑर्फनेज में भी कोई रह रहा है बच्चा और उसकी भी तो पढ़ाई हो रही है, उसको भी तो कपड़े मिल रहे हैं, उसको भी तो खाना मिल रहा है, और जिस ऑर्फनेज में, जिस बिल्डिंग में वो रह रहा है, उसको भी तो किसी ने बनवाया, उसमें भी तो पैसा लगा, फ्री में तो नहीं बन गई बिल्डिंग, ऐसे थोड़ी हवा में खड़ी हो जाती है कोई बिल्डिंग। तो जहां पर भी आप हैं, जैसा भी आपका बचपन रहा हो, किसी ना किसी ने आपके लिए पैसे दिए हैं, चाहे वो आपके खाने के लिए है, कपड़े के लिए है, पढ़ाई के लिए है, या आपके बर्थडेज के लिए है। बर्थडे कितना एक्साइटेड होता था हमारा, स्कूल में सबके लिए टॉफीज लेके जानी। आई रिमेम्बर एक्लेयर्स के बड़े बड़े पैकेट लेके जाते थे, हर एक की टेबल पे, डेस्क पे, वी यूज्ड टू गिव इट टू आवर क्लासमेट्स। एंड देन घर पे पार्टी हो रही है, स्कूल के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आसपास वाले सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, एंड उस टाइम पे जो केक आता था या स्नैक्स आते थे, वो सब भी तो किसी ने पे किया था ना। जो नई ड्रेस पहनी थी उस दिन, उसके लिए भी तो किसी ने पे किया था।
और जो गिफ्ट्स लोग लेकर आए थे, आपके जो फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट्स लाए थे, उस पे भी तो पैसा लगा था. So everybody has spent money for you, but we have never paid any gratitude to any of them. So today is the day that you start paying gratitude to each one of them. तो जब मैं बोलती हूँ कि हमें पुराने गड्ढे भरने हैं, तो हमने ये जो पुराने गड्ढे खोद रखे हैं जहां हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, तो उनको हमें पाटना पड़ेगा. हिंदी में बोलते हैं ना, गड्ढे को पाटना पड़ेगा, मतलब उसको कवर करना पड़ेगा. हमें उसको सारे को मिट्टी डाल के पूरा ऊपर तक समतल लाना पड़ेगा ना. तो वो जो गड्ढा है उसको भरने के लिए हमें उसको किससे भरना है? ग्रेटिट्यूड से. तो जो जो चीजों के लिए हमने आज तक ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, उसके लिए लेट्स स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द मनी व्हिच हैज बीन स्पेंट बाय पीपल ऑन अस. आप कभी बचपन में बीमार हुए तो डॉक्टर के पास भी गए होंगे, दवाई भी खाई होगी, तो उस पे भी पैसा लगा. आप वेकेशन पे गए, गर्मी की छुट्टियों में आप कहीं घूमने गए, और कहीं तो नानी के घर गए या दादी के घर गए या बुआ के घर गए, और कहीं नहीं भी घूमने गए, तो वहां तक जाने में भी तो पैसे लगे. और जब आप उनके घर में रहे, खाना खाया वहां पे, और उनके छत के नीचे रहे, तो उस पर भी तो पैसे लगे. सो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू जो जो इंसिडेंट्स याद आते जाते हैं, जो जो लोग याद आते जाते हैं, उनके लिए थैंक यू करते जाओ. बिकॉज एवरी टाइम यू विल डू इट ना, आपको नए नए लोग दिखाई देंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा. ऐसे ऐसे लोग नजर आने शुरू होंगे जिनके लिए आपको लगेगा, अरे उसने भी तो मेरे लिए ये किया था, मैंने तो उसको आज तक थैंक यू ही नहीं बोला. सो स्टार्ट डूइंग दिस टुडे. ओके? या. Yes, ma'am. Did you go to the dentist? Did you have essential items that are used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? ओके. Or तो सॉरी, it's अभी okay. जैसे हम कह रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब तो यूज किया ही किया होगा, टेलीविजन भी देखा होगा, जो भी प्रोग्राम्स उस टाइम पे आते थे. एंड द अदर थिंग व्हिच आई वांट टू से इज के जब हम ये टूथपेस्ट एंड उसकी बात करें, तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग, एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत होता है, मुझे ये वाली क्रीम चाहिए, मुझे ये वाला ये वाला पाउडर चाहिए, या मुझे ऐसे वाले हेयर बैंड चाहिए. तो ये बड़ा होता है बच्चों को ना, स्पेशली लड़कियों को ज्यादा होता है. तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे को एक ना क्रीम बहुत पसंद थी, जो मैंने ऑब्वियसली एड्स देख के हम लोग भी ऐसे ही खरीदते थे, जैसे आज भी लोग मार्केटिंग से जो भी हम एड्स देखते हैं उससे इम्प्रेस होके करते हैं. सो दे यूज्ड टू बी अ क्रीम कॉल्ड क्रीम एंड पीचेस, एंड इट वाज द पर्पल कलर की, जैसे निविया की डिब्बी आती है ना, टिन की छोटी सी, ऐसे वो पर्पल कलर की डिब्बी होती थी. एंड आई थिंक इट यूज्ड टू बी फ्रॉम जॉनसन्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और वो आसपास ना आसानी से मिलती नहीं थी, तो स्पेशली कहीं जाना होता था, तो पर मुझे वही वाली क्रीम चाहिए होती थी. एंड व्हेन आई नेवर थॉट वेदर माय पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट और नॉट, बिकॉज दैट वाज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन व्हाट अदर पीपल वर यूजिंग इट. और शैम्पू है तो उस टाइम पे जैसे हेलो शैम्पू आया या सनसिल्क शैम्पू है, तो वो वाला शैम्पू खरीदना है. नेवर थॉट इस पे कितने पैसे लगे होंगे. मतलब चाहिए तो चाहिए, बात खत्म. वो कैसे लाएंगे पता नहीं, अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं. ऐसे आज के बच्चों को भी आप देखो, तो उनको जो वो चीज चाहिए वो चाहिए. उनको थोड़ी पता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या आप खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते. हो सकता है आपको पैसे किसी और चीज के लिए चाहिए हो, you don't want to spend on that, but you can't do all that because बच्चों को भी खुश करना है. तो ऐसे ही हमारे माँ बाप भी करते थे, तो हमने भी तो कितना कुछ ऐसा उस टाइम पे मांगा था. हमने कभी उसके लिए थैंक यू बोला? मैंने तो नहीं बोला था. तो अब मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है, नहीं बोला था तो आज से बोलेंगे. सो आई एम ऑल्सो लाइक, आई ऑल्सो डिड दैट yesterday. आई ऑल्सो sat down and thought about all those people जो मुझे पहले कभी याद नहीं आए, and it was an amazing experience. हाँ जी, पढ़े. all of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you receive that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money,
you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. Yeah. So आप जब अपने पुराने जो गड्ढे खोदे हैं उनको जो भरना शुरू करेंगे ग्रैटिट्यूड से, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो पैसे के लिए तो और पैसा आपके लाइफ में आएगा. It can come today also, it can come tomorrow, but it will start flowing into your life. ये डिपेंड करता है आपका गड्ढे कितने भरे हैं अभी तक. हाँ जी, पढ़े. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ओके, तो आज आपको क्या करना है, आपने एक नोट लेना है. 10 का ले लीजिए, 20 का ले लीजिए, 50 का ले लीजिए, 100 का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए, जो आपका मन करता है. तो आप एक करेंसी नोट लेंगे, उसके ऊपर आप एक स्टिकर लगाएंगे. उस पे आप क्या लिखेंगे, आई एम, जस्ट गो बैक एंड जस्ट रीड इट. So thank you for all the money that I have been given throughout my life. आपने जब ये थैंक यू कर लिया उसके बाद करना है, पहले नहीं करना है. ये नहीं हो कि आप अभी बिल लेके वो करेंसी नोट लेके लिखना शुरू कर दें. नहीं, पहले ये पूरा एक्सपीरियंस करना है कि आपके बचपन में और आपके पास्ट में आपको क्या क्या मिला है. कॉलेज में आपने खर्चा किया, आपने बाइक खरीदी और आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके घुमाते थे, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट्स में जाते थे या मूवीज जाते थे, तो कौन देता था पैसे? कोई तो देता था ना. तो उन सब के लिए भी थैंक यू बोलना है. सिर्फ स्कूल तक मत रुक जाना, कॉलेज का भी सोच लेना. कॉलेज में बहुत पैसे खर्चते हैं, है ना. तो जो जो भी हुआ है उस सबके लिए जिसने भी आपको पैसे के रूप में वो चीजें दी हैं, आपने उन सबको ग्रेटिट्यूड देना है. और उसके बाद आपने ये लिखना है, यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस ऑन अ करेंसी नोट. कोई भी आप कोई भी डिनोमिनेशन का ले सकते हो. उस करेंसी नोट के ऊपर आपने लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ. और उसका करना क्या है, लेट्स रीड दैट. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, the more you feel it. The faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. ओके, तो ये आपने क्या करना है, उसको लिखने के बाद अपने वॉलेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए. अगर चाहें तो आप अपना स्क्रीन सेवर बना सकते हैं मोबाइल पे, मैंने वही बना रखा है. तो आप उसको देखेंगे, जब आप उसको लिखने के बाद देखेंगे तो फील लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द मनी यू हैव रिसीव्ड इन विच एवर फॉर्म. इसीलिए पहले वो सब करना है, गो डाउन मेमोरी लेन एंड अपने जहां जहां पे आपको याद आ रहा है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया विच कॉस्टेड मनी, तो आप उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे, उसके बाद आपने जब ये लिखने के बाद आपने इसको अपने पर्स में रखना है, अपने वॉलेट में रखना है, या अपने मोबाइल पे रखना है, और आपको उसको देखना है. देख के वो सारा महसूस करना है हाउ मच यू हैव बीन गिवन एंड द फॉर्म ऑफ मनी, एंड देन स्पीक ग्रेटिट्यूड फॉर इट. तो जितनी सिंसियरली आप ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में पैसे से रिलेटेड मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे. हाँ जी, करें. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you... Pause. तो अब ये मनी किस रूप में मिल सकता है?
It can come in any form. हो सकता है आपको, आपने कोई पुराने कपड़े निकाले, आपने कुछ पहनने के लिए निकाला, आपने जेब में हाथ डाला तो उसमें से पैसे निकले. You know, you had kept some money in that and you had forgotten about it. So that is unexpected money, right? आपको तो पता ही नहीं था उसके बारे में. Similarly, आपने कुछ खरीदा and you're getting an offer 1+1 कि आपने एक खरीदा उसके साथ एक फ्री है. So that is also money. और हो सकता है आपने किसी चीज के लिए ऑर्डर प्लेस किया and it says you're getting a cashback. That is also money. और आपने कुछ और ऑर्डर किया, उस पे आपको डिस्काउंट मिल गया 20%. That is also money. क्योंकि वो 10-20% जो आप कम दे रहे हो, that means that is the kind of money you are getting. Are you getting that point? So wherever you are getting such rebates and things at a lower price, cheaper price, और उसके साथ कुछ offers मिल रहे हैं, that is also a form of money which you will be receiving. Yeah, please read now. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. Okay, तो करना क्या है, इसको आपने दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी देख सकते हो, आप इसको देखेंगे और उसको देखकर जब आप उसको पढ़ेंगे, thank you for all the money that I have received throughout my life. तो जब आप उसको फील करके पढ़ेंगे और ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे, तो you will attract abundance of money in your life. तो आपने यही करना है. इसको आप आज करें, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करें जितने दिन तक आप करना चाहते हैं, और maybe throughout your life if you want to have abundance of money flowing in, depends. But आज तो करना ही करना है. हाँ जी, पढ़ें. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. अब जब भी कंप्लेन करने, क्योंकि हमारा तो डिफॉल्ट मोड वही है ना, सारी जिंदगी तो हमने वही किया है, या तो कंप्लेन किया है, या वरी किया है, या फियरफुल हुए हैं, या एंग्शियस हुए हैं. तो जैसे ही ऐसा कोई थॉट मनी को लेके आने लगे, आपने करना क्या है उस टाइम, यू हैव टू जस्ट स्टॉप, बिकॉज यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. और अगर आपने कंप्लेन किया है तो आपको और ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें आप मनी के लिए और कंप्लेन करें, और उससे क्या होगा, flow of money which because of your gratitude had started flowing towards you, जो पैसा आपकी तरफ आ रहा था उसका फ्लो टूट जाएगा, वो वही रुक जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा. या shall I change the page? No ma'am. From this day forward, make a promise to. One second. Make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that cost money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Okay, I want you to read this last paragraph once again. And read it intentionally, huh? Make a promise to yourself that whenever you receive any money. One second. I want everyone to pay attention to this particular paragraph, which will give you an access. Which will give you an access to how to stay in gratitude. Okay. So I want everybody to pay attention to this. That's why I've asked her to read it again.
Yeah, please read it. Make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Okay, one Each of second. अब क्या होता है, हमें जब सैलरी मिलती है तो वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड ना यार. जब व्हेन आई वाज वर्किंग मुझे पता है लास्ट वर्किंग डे पे तो सैलरी आनी ही आनी है. सो व्हाट बिग डील अबाउट इट. पूरा महीना काम किया तो पैसे तो मिलने ही है ना. नो, एवरी टाइम यू रिसीव द सैलरी, पे ग्रेटिट्यूड टू इट. जिन लोगों ने लॉकडाउन में इस चीज का एहसास किया है, जब उनको 30% 40% कट के सैलरी मिल रही थी, 50% कट के सैलरी मिल रही थी, या कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली है, उनको मालूम है इस चीज का कि यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आपको ये नहीं है कि मैंने पूरा महीना काम किया तो मुझे पैसे मिल ही जाएंगे. अगर मिल रहे हैं तो उसके लिए ग्रेटफुल हो. बी ग्रेटफुल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, be grateful to your your boss or the kind of work you are doing. कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मुझे सैलरी देती है. So just start looking at it. आपको सैलरी मिल रही है तो ये आपका हक है, बट वो हक सबको मिलता है क्या? जितनी सैलरी चाहिए उतनी मिलती है क्या? और अगर जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती है क्या? कितनी जगह पे ऐसे है, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में सुना है, couple of friends, कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आपसे साइन एक एक्स अमाउंट पे कराते हैं, पर देते आपको उससे बहुत कम सैलरी है. ऑन पेपर्स यू आर पेइंग पेड दैट मच, बट व्हाट यू आर गेटिंग इज नॉट द सेम अमाउंट. सो ऐसा बहुत जगह पर है. सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपने पूरा महीना काम किया तो आपको सैलरी अगर लास्ट वर्किंग डे पे मिल रही है तो हाँ वो तो मिलनी ही थी. नो, मिल रही है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ. अगर आपने टैक्स रिफंड मिला है आपको तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठ भी सकता था उसके ऊपर, नहीं भी दे सकता था. क्वेश्चन रेज करते रहोगे, जवाब नहीं मिलेगा, बट आया है रिफंड, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो इन सब चीजों के लिए भी स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज थिंग्स. हम लोग करते क्या, हमको लगता है ये तो हमारा अधिकार था, दे दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, और अगर ये रिफंड तो आना ही था यार, इसमें कौन सी बात है. अगर मान लो आपने कोई किराए पे जगह दे रखी है और उसका रेंट आ रहा है तो आपको यार ये तो है ही ना, आना ही है, वो तो कौन सी बड़ी बात है. बट जिनको नहीं मिला ना रेंट, उनसे पूछो कि जब उन दिनों में पूरे लॉकडाउन में 1-1 साल का रेंट नहीं दिया लोगों ने. ऐसा हुआ है ना सबके, बहुत लोगों के साथ. सो बी ग्रेटफुल दैट यू आर गेटिंग इट. सो आज से जब भी पैसा जिस भी फॉर्म में आता है आपके पास, डिस्काउंट के फॉर्म में आता है, या आपको कोई ऑफर मिलती है उसके हिसाब से आता है, या आपकी सैलरी मिलती है, या आपको टैक्स रिफंड मिलता है, या आपको बोनस मिलता है, या आपको इंक्रीमेंट मिलता है. So, हर चीज के लिए बी ग्रेटफुल, बिकॉज जितने ग्रेटफुल होगे उतना ही आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ेगा. हाँ जी, पढ़े. Each of these circumstances means that you have received money, and each instant gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. ओके तो अभी क्या है, अगर हमें ये बात समझ आ गई है कि हमें ग्रैटिट्यूड पैसे के लिए जैसे देते जाएंगे, जितना देते जाएंगे उतना ही पैसा हमारे पास आएगा, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. आपको कोई 10 रुपए भी फालतू देता है, या आपको उससे 10 रुपए कम लेता है, या आपको कहीं से भी पैसे मिलते हैं, किसी भी फॉर्म में मिलते हैं, just consider that as an opportunity given by the universe to you to attract more money into your life. Just pay gratitude and invite and receive abundance in your life. Yeah, so that is all about this chapter, and I hope I have been able to help you in understanding ke ye kis tarah se kaam karta hai. But still, if you have any question you can ask after the magic practice. हाँ जी, पढ़े. Magic practice number 5. Magic money. Number 1. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings
Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number I hope 2, you all have got hang of doing this कि कैसे करना है, because आज हमें 4-5 दिन हो गए ये करते हुए. तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसको लेकर तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज आपका दिन की शुरुआत इसी के ऊपर बेस्ड है. तो आप अपना इसको अच्छे से सीख ले इसको कैसे करना है. तो अगर कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट हो तो पूछ लेना. अगर फिर भी डाउट लग रहा है आपको तो आप यू गो बैक टू चैप्टर 1 एंड रीड इट अगेन कि उसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या टेम्पलेट्स हैं हमें जो यूज करने हैं या और उसको कैसे लिखना है. ठीक है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं. हाँ जी, पढ़ें. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. ओके, तो आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है. किसी टाइम भी आपको टाइम, अभी दिन के टाइम भी मिल जाए, जस्ट सिट डाउन फॉर फ्यू मिनट्स एंड जस्ट गो डाउन मेमोरी लेन और वो सब याद करें जहां जहां पर भी आपके लिए किसी और ने पैसा खर्चा था और आपने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया था. और अगर अभी तक दे भी चुके हो तो और दे दो, बिकॉज जितना दोगे उतना बढ़ेगा. हाँ जी. Shall I change the page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big, bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ओके, तो आज आपको जो ये मनी का प्रैक्टिस है, इसमें 2 आपको प्रैक्टिसेस करनी है. एक तो आपने सिट डाउन एंड गो डाउन योर मेमोरी लेन एंड जिसने भी आपके लिए पैसे खर्च किए हैं आपके पास्ट में, उन सब के लिए आपने थैंक यू बोलना है. दूसरा आपको क्या करना है, आपने एक करेंसी नोट लेना है, कोई भी डिनोमिनेशन का ले सकते हो. उसके ऊपर आपने बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना है Thank you for all the money I have been given throughout my life. उसके ऊपर स्टिक कर दो. उसको स्टिकी नोट से लगा सकते हैं आप, या आप किसी पेपर पे लिख के उसको उसके ऊपर चिपका सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है. दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. और उसको करना क्या है, आपने उसको देखना है दिन में 3-4 बार और वो सब याद करते हुए कि आपके कितना कुछ मिला है अब तक पैसे के रूप में. उस सबको याद करते हुए आपने इसको पढ़ते हुए थैंक यू बोलना है मनी को. हाँ जी, पढ़े. Number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times you have want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. ओके, तो उसको ना उसने लिखा था कि वॉलेट में रख लो या पर्स में रख लो, तो मैंने वॉलेट में रखा तो वो पड़ा ही रह गया, मैंने निकाला ही नहीं कभी. वो आज भी वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऐसी जगह पड़ा है कि मैं ऐसी जगह रखा है कि मैं उसको यूज ना कर लूं. तो ऐसी जगह पड़ा है कि वो निकलता ही नहीं बाहर, कभी निकाल के देखा ही नहीं है मैंने. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. तो आप इसको अपने घर पे, जैसे हमने वो हेल्थ के बारे में लगाया है, आप इसको डॉलर बिल को भी कहीं पे चिपका सकते हो इफ यू वांट, or you can make it as your screensaver for your mobile or your laptop so that every time you see it you feel gratitude for it. ठीक है, तो जो भी आपके लिए वर्क करता है you do it that way. और आपने दिन में 2-3 बार देखना है. अगर आपको पैसा बहुत जल्दी चाहिए तो आप दिन में जितनी बार देख सकते हैं देखें and feel gratitude. That is the only way to attract more money into your life. हाँ जी. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. ओके, तो आज के बाद आज तो उसको अपने साथ कैरी कर लो. जैसे मैंने बोला, द इजीएस्ट वे इज आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं इसको.
तो आज तो इसको अपने साथ कैरी कर लो। उसके बाद आप चाहो तो जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला था कि मैंने जो गिफ्ट ऑफ हेल्थ वाला है वो मैंने अपने बाथरूम के मिरर पे लगा रखा है। सिमिलरली बहुत सारे लोगों ने ये जो आपका करेंसी नोट है उसके ऊपर ये लिख के अपने फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से चिपका रखा है, या अपने स्टडी टेबल के पास लगा रखा है। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, आप उस तरह से इसको लगा के रखें कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा बार देख पाए और ग्रेटिट्यूड को फील करके ग्रेटिट्यूड दे पाए। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." And the last one, of course, you know that the first and the last you have to do every day. So last one is that you hold your magic rock in your hand, hold it, go through your whole day and think about आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। जैसे मैं कल आई हूँ तो मुझे मेरी जो ड्राइवर था बहुत अच्छा था, गाड़ी उसने इतनी बढ़िया चलाई, रास्ता इतना अच्छा था, इतना एंजॉय किया, हवा इतनी अच्छी चल रही थी। 3 साल के बाद कल मैंने गन्ने का रस पिया, इट वाज सो टेस्टी। And when I came to this resort, it is so beautiful, so peaceful. So ऐसे करके शाम को जैसे मैं गंगा किनारे गई and लक्ष्मण झूला, it was so beautiful. हम सीढ़ियों पे बैठ के जब ठंडी ठंडी हवा, पानी का बहाव देख रहे हैं, it was everything was so beautiful. तो जब मैं रात को बैठ के सोच रही थी तो I was feeling कि आज तो कितना कुछ अच्छा हुआ है। And then out of that, what was the highlight? जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में सोचो, say thank you and put your rock on the bedside and go to sleep. तो वैसे ही आपने करना है। So this is the magic practice for today. In case anybody has any question, you can ask now. And thank you so much, Archana, for reading it for all of us. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity. You're welcome. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर को लेके या इससे पहले किसी चैप्टर को लेके या मैजिक प्रैक्टिस को लेके? So you can ask right now before we conclude. Ma'am, I have few questions, ma'am. Archana, this side. Yeah, Ma'am, sure. I had made this note last time also, so I have to make another note this time. No, you can use the same one. Okay, ma'am. And You can ma'am, use the same. yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, one more thing. Like whenever we are looking at the note and giving gratitude for all the money we have received, I have to remember all the instances of the past that time also. Whatever comes first. दिमाग में क्या आता है? एक दो इंसिडेंट्स भी आते हैं तो दैट इज ओके। पर करना ये, पर पहली बार जब ये करना है तो वो पूरा एक्सरसाइज करने के बाद करना है, सो दैट यू आर इन दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब तक आप अपने आप को वो ग्रेटिट्यूड से सराबोर नहीं कर लोगे ना, सैचुरेट नहीं कर लोगे ना, तो आप जब ये लिखोगे ना, इट विल नॉट हैव एनी मीनिंग। जब आप उसको महसूस करोगे, अंदर से उस फीलिंग को महसूस करोगे, उसके बाद आप इसको वो करेंसी नोट पे लिखोगे, तो वो जैसे कहते हैं ना, जब बहुत भर जाता है तो डुलता है, गिरता है बाहर, है ना? तो जब आप अपने आप को सैचुरेट कर लोगे ना वो सारी फीलिंग्स को, यू विल फील इट, यू विल फील ओवरवेल्म्ड। जब आप ये सब सोचोगे ना, कितनी बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार मैंने तो कभी बोला ही नहीं थैंक यू, कितना कुछ दिया मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने अंकल्स के लिए। जब आप इन सब के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, तो कभी कभी तो इतना इंसान ओवरवेल्म्ड हो जाता है। तो ये जब आपकी फीलिंग्स ओवरवेल्मिंग वाली हो जाती है, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो ग्रेटिट्यूड के लिए और ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो, उस टाइम पे जब आप इस डॉलर बिल पे लिखोगे ना, तो वो वाइब्रेशंस उसमें ट्रांसफर होती है। जब वो ट्रांसफर होती हैं तो जितनी बार भी आप देखोगे, यू विल इंस्टेंटली गेट कनेक्टेड। आपको उसी टाइम पे ग्रेटिट्यूड महसूस होगा, बिकॉज उसमें वो भरा हुआ है आपने। सो दैट इज द रीजन। या लवली मैम, थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता? सिर्फ अर्चना के पास ही होते हैं क्वेश्चंस? मैम इसको, हाय मैम, तरुण दिस साइड। या तरुण, तो दो क्वेश्चन इज नॉट वेरी रेलेवेंट, लेकिन इसको मैजिक रॉक क्यों कहा जाता है? व्हाई डू यू कॉल इट मैजिक रॉक नॉट मैजिक स्टोन? बिकॉज़ इट्स स्मॉल इन साइज, नो? आप स्टोन भी बोल सकते हो। अच्छा, इट्स अप टू यू, पर्पस उसका क्या है आपको वो याद रखना है। क्योंकि आप ही उसको मैजिक स्टोन या मैजिक रॉक बना रहे हो। स्टोन और रॉक में डिफरेंस होता है ना,
What is हाँ the जी, हाँ difference, जी. Tarun? Rock और magic stone? I guess कि rock जो होती है वो those are bigger slates of sand. नहीं नहीं, रॉक का मेटाफोरिक मीनिंग क्या होता है? Metaphoric रॉक meaning क्या सॉलिड, रॉक सॉलिड. solid होता है. जब हम बोलते हैं ना दिस गाय इज रॉक सॉलिड, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रांग है बंदा, है ना? हाँ जी. एंड कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी भी देता है ना. Rock, लेकिन रॉक सॉलिड. rock जब when you think about rock, it looks like कि मतलब वो थोड़ा edgy होगा, थोड़ा sharp होगा, you know, something when it comes about rock. It's not smooth and curvy, जैसे आपने बताया था कि एक ऐसा stone लो which is हाँ, so round in Tarun, that is your interpretation of rock. Okay. या हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग होता है. तो मेरे लिए रॉक मीन्स रॉक सॉलिड. रॉक मीन्स समथिंग विच इज बहुत सॉलिड है अंदर से. तो जब आप उसमें इतना ज्यादा मैजिक डालते जा रहे हो ग्रेटिट्यूड का, तो उसके अंदर जो है ना, जो ग्रेटिट्यूड का जो मैजिक है ना, वो रॉक सॉलिड हो जाता है. So that is how I interpret it. क्योंकि स्टोन में वो छोटा मैग्नीफाई नहीं हो रहा है, बट जब आप रॉक कहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है. That is right. ये point तो I can relate to. So that is why we say rock. But if you want to call it stone also is okay. Okay ma'am. Thank you. It is only the book says rock. So जब हम कह रहे हैं कि बुक को फॉलो करो तो रॉक बुला लो. ठीक है. Okay. Any other question? Ma'am, I have a sharing, ma'am. Archana only. Yeah, Archana. Ma'am, like I was discussing with one of my friends. I told her that this time I'm doing magic book with more dedication, and like I have done twice, but I didn't do so much. And I told her that this is the first time I'm paying and doing. Then she told me, oh yes, money has got energy, and you also told the same thing. Yeah. Money has got energy. When you pay, you feel ki haan, theek hai. Though you're not taking very big amount, but yes, I don't know why I'm doing it more dedicatedly this time than like the past ones. Yeah, because there's something at stake. So that is why. See, I am not doing these sessions for money. Yes, ma'am. You all know that. Yes, ma'am. I've been doing it for so many months now, and I'm not doing it for money. It is something which is very close to my heart, and I really want everybody to know about it, and I want everybody to get benefit out of it. और मैं अगर इसमें कुछ contribute कर सकती हूँ, तो that is the whole intention. But I have seen that people, अगर आप अभी भी देखोगे तो हमारे ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कितने लोग हैं? I think 40+ लोग हैं उसमें. पर सेशन में कितने लोग आते हैं? 10, 11, 12, 13. So the only difference is कि जब आपने पैसे दिए होते हैं ना, तो आपको लगता है कि कुछ स्टेक पे है. And then you feel responsible कि यार मैंने इतने पैसे दिए तो इसकी वैल्यू तो लेनी है मुझे. You know? I don't want to waste money. तो कहीं ना कहीं वो mindset होता है कि something is at stake. That is the whole purpose. Commitment बढ़ जाती है, जैसे आपने खुद ही बोला कि आप ज्यादा committed हो इस बार. और इसलिए मैंने जब शुरू में मैंने जब बोला क्या है, this is going to be the commitment fee, so many people didn't come forward to do it. So then I said, okay, let everybody join, and if they feel that they're getting any benefit, if they want to contribute, maybe they can towards the end, if they want, if they feel that they've got touched, moved, and inspired by this, they've got some benefit out of it, and they want to, you know, motivate me and encourage me to keep doing this. If they want to contribute, they can. So that is why I just left it like that. And I'm very grateful to all of those people who initially came when I said that this is the amount to be paid, and they paid and joined. And I want everyone to, and I want everyone else to know that you know, these are the people who actually pushed me and urged me to do it. And so thank you everybody who have already been supporting me and motivating me to do this. And so that's what I wanted to say. Okay. And enjoy the beauty behind me. All because of you, ma'am. All because of you. You're so good. I really miss you, ma'am. Thank you so much for your love. And I want you to enjoy the beauty behind me. The sun is out, and I'll just lift my laptop and show you Ganga also.
So before that, let's do our practice. So hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. So जब मैं बोल रही हूँ whosoever, so you can say thank you to anybody who has paid money for you in the past, so that you can start doing the assignment from now onwards only. Yeah. So close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so thank you everybody and have a wonderful day. Today is Wednesday, so Wednesday के लिए क्या बोला जाए? Give me some ideas. Something from W. Wonderful Wednesday. Wonderful is okay. और कुछ सोचो, कुछ more catchy and more positive क्या हो सकता है? Give me some ideas. Wisdom. Wise Wednesday. Yes, it will work. Okay. So have a wise Wednesday today, and I will see you tomorrow at 6:20. So let me just show you Ganga. Can you see Ganga now? Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, we can. Okay. Wow, वाली feeling आ रही है बता. I joined in few minutes late. कहाँ पे आए आप? I'm in Rishikesh right now. Wow. Okay, guys. Thank you, everybody, and I will see you tomorrow. And do the assignment, please. Enjoy your day, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am.